My lovely students, welcome to Mathological. Let us start another quant practice session. And if you've not already subscribed to the channel and you're liking the content, then press the bell icon and subscribe to the channel. And you can also join the Telegram channel Mathological or can message me on Telegram at ADITYAKT. So the first question, a list of 9 natural numbers in which 2 is the smallest number has 2 modes. So there's a list of 9 natural numbers which has 2 modes. And 2 is the smallest number in the list. The range of the data of the list is 9. The mean, the median and the largest mode of the list are equal. So mean, median as well as the largest mode, these are equal. 2, 3 and 10 appear once in the list, then how many such lists are possible? A very good question. Pause the video, try to solve it. 9 natural numbers are in total. Smallest has 2, minimum value is 2. And range of the data is 9. Range of data क्या होगा? Range is maximum minus minimum. And this is equal to 9. Minimum value is 2. तो maximum value क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, because 11 minus 2 is 9. So maximum value definitely is 11. Additionally, mean, median and largest mode are equal and 2, 3 and 10 appear once in the list. और list में सारे के सारे natural numbers हैं, तो 2 के बाद अगला natural number तो 3 ही आएगा. So first और second number तो मिल गया हमको 2 and 3. और 3 भी एक ही बार आया है, यानी कि 3 cannot be the mode value. Mode तो नहीं हो सकता है, because list has exactly 2 modes. 2 then 3. Similarly 10 is also appearing once, और 10 just छोटा natural number है 11 से, तो 2, 3, 10, 11. These 4 numbers we are sure about, and these 4 are occurring exactly once. Isn't it so? Exactly once. 11 क्यों exactly once अगर करेगा? Because question हमें कह रहा है कि mean, median and largest mode are equal. तो largest mode is also equal to mean, which is equal to average. तो अगर largest mode equal है average के, so that implies कि 11 तो फिर largest mode नहीं हो सकता है, because 11 cannot be the average value, highest value हो तो, ठीक है. So definitely 11 is also appearing exactly once. क्या ये part clear है? इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है, कि 11 इज ऑल्सो अकरिंग एग्जैक्टली वंस. मेंशन नहीं है, बट क्यों एग्जैक्टली वंस होगा? बिकॉज लार्जेस्ट मोड इज ऑल्सो इक्वल टू एवरेज वैल्यू, सो दैट कैन नॉट बी 11. ठीक है, 11 2 टाइम्स नहीं आ सकता है. और चलो हम एक बार ये भी एज्यूम कर ले 11 को 2 टाइम्स आ जाने देते हैं, बट टोटल नंबर्स हमारे पास लिस्ट में कितने हैं? 9 है. एंड इफ 11 अकर्स 2 टाइम्स एंड 11 इज नॉट द मोड वैल्यू, तो फिर मोड वैल्यू जो हमारा होगा दैट विल बी अकरिंग 3 टाइम्स, बिकॉज मोड क्या है? जो सबसे ज्यादा बार अकर करे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से अकर करे, सो दैट फ्रीक्वेंसी देन शुड बी 3, बिकॉज 11 2 टाइम्स आ रहा है, बट फिर भी 11 इज नॉट मोड. इजंट इट सो? सो दैट इज वाई डेफिनेटली टोटल नंबर्स हमारे 9 है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. अगर 11 2 टाइम्स आ जाएगा लेट अस से, तो 2, 3, 10, 11, 11, लेट अस से 2 numbers are that are modes are A and B. So A, B, 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 टोटल नंबर्स हमारे हो जाएंगे 3, 3, 6, मिनिमम भी रखा 7, 8, 9, 10, 11. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. 11 नंबर्स तो है नहीं हमारे, ठीक है. सो दिस इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल. सो 2 विल बी अकरिंग एग्जैक्टली वंस, 3 विल बी अकरिंग एग्जैक्टली वंस, 10 will be occurring exactly once, 11 will be occurring exactly once. 4 numbers तो हमारे आगे, टोटल 5 are remaining, जो कि मिडिल में आएंगे समवेयर, बिकॉज 2 इज मिनिमम, 11 इज मैक्सिमम, और एग्जैक्टली मिडिल में आएगा हमारा मीडियन. देयर विल बी 2 numbers बिफोर दैट, 2 numbers आफ्टर दैट, टोटल नंबर्स 9 हो गए. ओके, सो लेट अस से दैट नंबर इज B. Now since we have 2 modes and the median, which is occurring exactly in the middle, is also the largest mode. So if median is also the largest mode, in that case median से पहले एक मोड आ चुका होगा, यानी कि one number must have occurred twice before median. So let us say that number is A. So A must have occurred twice, and now the largest mode which should be equal to median, so that is B. तो B भी 2 बार आया होगा, exactly 2 बार आया होगा, and then number should be C. So these should be numbers 2, 3, A, B, B, C, 10, 11. Okay, is this much clear? So order बन गया हमारा 2, then comes 3, then A, then A, then B, then B, then C, then 10, then 11. And this value of B, this is mean as well as median as well as largest mode.
सो इफ दिस इज मीडियन, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर हमने अरेंज किया है, सो डेफिनेटली ए will be greater than 3 and C will be less than 10, and A will be less than B, B will be less than C, 3 will be less than A, and C will be less than 10. This will be correct order. Additionally, average of all these numbers will be equal to B only. So 2 plus 3 plus 2 times A plus 2 times B plus C plus 10 plus 11 divided by 9, this will be equal to B. So 2 plus 3 is 5 plus 10, 15 plus 11, 26 plus 2A plus 2B plus C, this is equal to 9B, and hence 7B comes out to be equal to 26 plus 2A plus C. Seven B is equal to 26 plus 2A plus C. ठीक है, so 7B minus 26, this will be equal to 2A plus C. अब इसे क्वेश्चन वैल्यूज पुट कर सकते हैं. 7 minus 26 has to be positive because A और C भी तो नेचुरल नंबर्स है और उनका सम कर रहे हैं हम. Isn't it so? और सिंस A is greater than 3, तो मिनिमम वैल्यू A का क्या आएगा 4. A can be equal to 5 और C का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकता है 9. भाई A can be 4 और 5 और 6 maybe. C can be 9 or 8 or 7 maybe. These are the possible values. Okay. क्या ये पार्ट क्लियर है? तो 7B minus 26 is equal to 2A plus C. अब B की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, सो B का वैल्यू क्या होगा? इफ A का मिनिमम वैल्यू कैन बी 4, then B का मिनिमम वैल्यू कैन बी 5 because B has to be greater than A. So B की मिनिमम वैल्यू 5 पुट कर सकते हैं. So if we put B is equal to 5, 7B will be 35. So 35 minus 26 comes out to be equal to 9. But if 9 is equal to 2A plus C, क्या कोई सॉल्यूशन मिलेगा यहां से? बिकॉज A कैन बी इक्वल टू 4. A 4 से छोटा हो नहीं सकता एंड C मस्ट बी ग्रेटर देन B. तो C मस्ट बी ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 5, यानी कि मिनिमम वैल्यू भी C का 6 आएगा. तो वहां पे हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है बिकॉज C का मिनिमम वैल्यू हैज टू बी 6, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. तो B इज इक्वल टू 6 ले लो. फॉर B इज इक्वल टू 6, 42 minus 26, this is equal to 16. 16 is equal to 2A plus C. Okay, so if you take B is equal to 6 है, C की वैल्यू कैन बी 7, बट C अगर ऑड होगा तो 2A will be 9, तो C कैन बी 8. C को 8 ले लो. If C is equal to 8, 2A will also be 8, यानी कि A 4 आ जाएगा. A is equal to 4, C is equal to 8. So that is a possible solution. A is equal to 4, C is equal to 8, that is a possible solution. And if B is equal to 6, that is the only solution for B is equal to 6. बिकॉज बाकी केसेस में या तो C हमारा 7 आएगा या फिर 9 आएगा, एंड फॉर दोज ऑड वैल्यूज 2A हमारा ऑड हो जाएगा. 2A ऑड होगा तो A हमारा नेचुरल नंबर नहीं होगा, जबकि ऑल द numbers that the list contains are natural numbers. So this is the only solution for B is equal to 6. If we take B is equal to 7, then 49 minus 26 becomes 23, which is equal to 2A plus C. और यहां से फिर हमें कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा बिकॉज A का मैक्सिमम वैल्यू भी 6 ले पाओगे. सो 2A विल बी 12 और वहां पे C आएगा 11. C विल बी 11. अगर A लिया 6 तो C विल बी 11. अब A 6 से बड़ा हो नहीं सकता बिकॉज B इज इक्वल टू 7. तो C हमारा डेफिनेटली 11 से छोटा नहीं हो पाएगा, जबकि C मस्ट बी लेस देन 10. सो दैट इज वाई देयर विल बी नो सॉल्यूशन. और B इज इक्वल टू 7 पे सॉल्यूशन नहीं मिला तो B इज इक्वल टू 8 पे तो कतई नहीं मिलेगा. तो डेफिनेटली the only solution in this case, the only list in this case will be when A is equal to 4, C is equal to 8 and B is equal to 6. So option B, 1 will be the answer. Exactly one such list is possible, and that list will be 2 followed by 3, then there will be 2 A's which is equal to 4, followed by 2 B's which is equal to 6, followed by 1 C which is equal to 8, 10 and 11. So this will be that list. Okay, clear है? ठीक है, next question. Chaitali has 3 spirit solutions A, B and C. A contains 50% spirit, B contains B% spirit and C has C% spirit. She mixes 30 ml of A, 40 ml of B and 50 ml of C to obtain a solution X containing 45% spirit. Now she mixes 30 ml of B, 40 ml of C and 80 ml of X to obtain a solution Y containing 44% spirit. How much solution B should be mixed with the remaining solution X to obtain solution A? That is the question. Pause the video and try to solve it.
So we have three solutions, A, B and C. A has 50% spirit, B has B% spirit and C has C% spirit. Chaitali mixes 30 ml of A, 40 ml of B and 50 ml of C. तो total mixture कितना हो जाएगा? Obtained a solution X. Total mixture will be 30 plus 40 plus 50. So that will be 120 ml. 120 ml. Isn't it so? तो एवरेज ले लो और हमें पता है कि X में क्या है? X में 45% स्पिरिट है एज अ रिजल्ट. ठीक है. सो 50% स्पिरिट का सॉल्यूशन 30 ml लिया, B% स्पिरिट सॉल्यूशन 40 ml, C% स्पिरिट सॉल्यूशन 50 ml. रिजल्टेंट इज 45% स्पिरिट सॉल्यूशन 120 ml इन टोटल. सो वी कैन राइट एवरेज के लिए 50 into 30 plus B into 40 plus C into 50 divided by 30 plus 40 plus 50 and that is equal to 45. So that will be average. या फिर कर सकते हो कि तुम 30 40 50 का रेशियो ले लो. ये 3 यूनिट्स हमने लिया है सॉल्यूशन ए, 4 यूनिट सॉल्यूशन बी एंड 5 यूनिट सॉल्यूशन बी एंड एज अ रिजल्ट क्या मिला हमें? 12 यूनिट सॉल्यूशन मिला टोटल. ठीक है. सो 3 into 50 प्लस 4 into B plus 5 into C divided by 3 plus 4 plus 5 which is 12 units and this is equal to 45. So 3 into 50 is 150. 150 plus 4B plus 5C is equal to 540. So यहाँ से 4B plus 5C comes out to be equal to 390. This will be first equation. 4B plus 5C is equal to 390. Now second statement is saying she mixes 30 ml of B, 40 ml of C and 80 ml of X to obtain a solution Y. So this time she is mixing 30 ml B, 40 ml C and 80 ml X to obtain Y. So Y will be total 80 plus 40, 120 plus 30, 150 ml. And again we can take the ratio to 3 is to 4 is to 8. और टोटल आ गया हमारा इक्वल टू 15 यूनिट्स. 15 यूनिट्स आ गया. ओके. सो एवरेज विल बी 3 into B, 3B plus 4C plus 8 into 45 which is 360. तो plus 360 divided by 15 and this is equal to 44. So 3B plus 4C will be equal to 44 into 15, 660 minus 360 that is equal to 300. This is our second equation. तो फर्स्ट इक्वेशन आया 4B plus 5C is equal to 390. सेकंड इक्वेशन है 3B plus 4C is equal to 300. दोनों को सॉल्व करके हमें B और C की वैल्यूज मिल जाएगी. ठीक है. B और C की वैल्यूज मिल जाएंगी. इफ यू सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट, तो फर्स्ट माइनस सेकंड, दिस विल गिव अस B plus C is equal to 90. B plus C 90 आ जाएगा. मल्टीप्लाई दिस बाई 3, तो 3B plus 3C is equal to 270. And if 3B plus 3C is 270, 3 plus 3C is 270, तो C की वैल्यू आ जाएगी यहां से, बिकॉज 3 plus 4C 300 है, तो C will be equal to 30% and B will be equal to 60%. C is 30% and B is 60%. Okay. Question is asking how much solution B, यानी कि 30% स्प्लिट वाला कितना सॉल्यूशन मिक्स करना पड़ेगा विद रिमेनिंग सॉल्यूशन X. रिमेनिंग क्यों? बिकॉज X इनिशियली वॉज प्रिपेयर्ड was total 120 ml and out of that 120 ml we have already used 80 ml. So this has already been used. So remaining will be 120 minus 80. Total 120 ml solution में prepare किया था. Out of that 120 we have already used 80 ml. So remaining solution is 40 ml. ठीक है. 45% split solution X that is remaining is 40 ml. ठीक है. So X now that is remaining is 40 ml. 45% and we are mixing it with B. और B का कंसंट्रेशन कितना है? B% which is equal to 60%. And these are mixed to obtain solution A. Solution A is basically solution containing 50% spirit. So average हमारा कितना आ रहा है? 50%. ठीक है. कितना यूज कर रहे हैं B? That is what the question is. So 60% and 45% spirit solutions are mixed to make a spirit solution of 50%. एलिगेशन लगा दो.
So this will be 60 minus 50, 10. 50 minus 45 will be 5. तो रेशियो आ जाएगा हमारा 1:2 का. So B and X should be mixed in the ratio 1:2. And X remaining was 40 ml. So 2 units is equal to 40 ml. And hence 1 unit will be equal to 20 ml. So 20 ml B must be used. Option B will be the answer. Clear है? Option B will be the answer. Next question. If n is a natural number, then find total number of solutions of the given equation n by 9 integral part is equal to n by 11 का integral part, where z denotes the greatest integer less than or equal to z. So what should be the answer in this question? So for example, if we take n is equal to, n क्या है? एक natural number है. n is a natural number. So if we take n is equal to 1, n by 9 integral part क्या होगा? That will be equal to 1 by 9, which will be equal to 0. 1 by 9 का integral part 0 आएगा. Similarly n by 11, this will be 1 by 11, ये भी 0 आएगा. So both will be equal, both are equal. n is equal to 1 पे इक्वल है, 2 पे भी 2 by 9 0 ही रहेगा. ठीक है, 2 by 11 भी 0 ही रहेगा. So 2 पे भी इक्वल 0 ही रहेगा, यानी इक्वल रहेंगे. So n is equal to 1 पे भी इक्वल है, 2 पे भी इक्वल है, 3 पे भी होगा, and so on. When we will be putting n is equal to 8, वहां पे भी रिजल्ट हमारा क्या आएगा? 0 ही आएगा. But n is equal to 9 पे n by 9 becomes equal to 1. Integral part भी 1 हो जाएगा. So this will be equal to 1. But n by 11, this is equal to 9 by 11, which is less than 1. So integral part will be 0. So these are non-equal. n by 9 पे these will be unequal. n equal to 10 पे भी unequal रहेंगे, but n equal to 11 जैसे ही पुट करोगे यहाँ पे. So 11 by 9 integral part is equal to 1, and 11 by 11 integral part is also equal to 1. So now they will again be equal at n is equal to 11. फिर से एक बार इक्वल हो जाएंगे, और फिर थोड़े डिस्टेंस बाद कब n is equal to 18 जैसे ही आएगा, तो 18 पे n by 9 will be 2, n by 11 will still be 1, so they will again be unequal. ठीक है, so after some intervals they will be equal, and then after a stage they will definitely be not equal for any other value. तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने टोटल सॉल्यूशंस हमें मिलने वाले हैं. तो पहला केस लेते हैं सारे के सारे कि इन एनी सच केसेस व्हेन दे आर इक्वल, दे विल बी इक्वल टू सम डेफिनेट वैल्यू, सम डेफिनेट इंटीजर. n by 9 is equal to n by 11. Let us say that is equal to I. But obviously I is an integer. So first case क्या बनेगा कि when I is equal to 1. So if I is equal to 1, सॉरी फर्स्ट केस होगा I is equal to 0. 0 होगा, 0 से स्टार्ट होगा ना, क्योंकि हमारा n नेचुरल नंबर है, I तो नेचुरल नंबर नहीं है, I को जरूरत नहीं है, I तो 0 भी हो सकता है. So first case is when I is equal to 0, and that will be following when our number n is between 1, it can be equal to 1, between 1 and 8, from 1 to 8, when this value is between 1 and 8, but less than 9. So from 1 to 9, when that value is between 1 to 9 and less than 9, तो हमारा I will be equal to 0. Isn't it so? Clear है? तो कितनी वैल्यूज मिलेगी हमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. टोटल 8 वैल्यूज मिलेगा. 9 पे तो n by 9 इक्वल टू 1 आ जाएगा, जबकि n by 11 0 होगा, तो 8 तक ही वैल्यूज ले लेंगे, 1 से लेकर 8 तक. सेकेंड केस विल बी व्हेन I is equal to 1. I is equal to 1 कब होगा? जब n by 9 पे हमें 1 रिजल्ट दे और n by 11 भी 1 रिजल्ट दे. n by 9 तो 1 रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा फ्रॉम n is equal to 9, बट n by 11 1 रिजल्ट देगा व्हेन n is equal to 11. तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारा क्या होगा n का? दैट विल बी 11. 11 इज लेस देन इक्वल टू n, और 2 से छोटा वैल्यू रहे, तो यानी कि n शुड बी लेस देन 18, बिकॉज जैसे ही 18 आएगा 18 by 9 विल गिव अस इंटीग्रल पार्ट इक्वल टू 2, सो n शुड बी लेस देन 18. तो फ्रॉम 11 to 18, so these values will be 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17. Second case when I is equal to 3,
एक सेकेंड, आई इज इक्वल टू क्या कर रहे हैं, 0 देन 1 देन 2, व्हेन आई इज इक्वल टू, अब आई इज इक्वल टू वैल्यू कब आएगा, स्टार्ट हो जाएगा 18 से, बट इक्वल नहीं होगा 18 पे, बिकॉज व्हेन n इज इक्वल टू 18, सो n बाई 9 तो हमारा 2 देगा, बट n बाई 11 1 देगा, तो 11 इंटू 2 22, स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा 22, लार्जेस्ट वैल्यू विल बी, जैसे ही n इज इक्वल 27 आएगा तो n बाई 9 3 रिजल्ट देगा, जबकि n बाई 11 2 देगा, तो 27 से छोटा वैल्यू होना चाहिए, तो फ्रॉम 22 टू 27 एंड इनइक्वालिटी एट 27, सो दीज वैल्यूज आर 22, 23, 24, 25 एंड 26. नेक्स्ट i इज इक्वल टू 3, स्टार्ट होगा n इज इक्वल टू 33, 11 इंटू 3 33 से, एंड 33 लेस देन इक्वल टू n लेस देन 9 इंटू 4 36, 36 से छोटा होना चाहिए, 33, 34, 35. Now I is equal to 4. 44 से स्टार्ट होगा, 11 into 4 44, and n should be less than 9 into 5 45, 45 से छोटा होना चाहिए, यानी there will be only one value possible which is equal to 44. और इसके बाद में अब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है, इसके बाद में अब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बिकॉज अगर हम चाहेंगे एंड i is equal to 5 मिले हमें, तो फॉर i is equal to 5 स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा 55, n should be less than equal to 55, ग्रेटर देन इक्वल टू 55, बट छोटा किससे होना चाहिए, 9 into 6 54 से छोटा होना चाहिए, बट इज इट पॉसिबल 55 से बड़ा हो या इक्वल हो और 54 से छोटा हो, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो नो सॉल्यूशन. सो दीज विल बी ऑल द सॉल्यूशंस, बस इतने ही सॉल्यूशंस मिलेंगे. फर्स्ट केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने मिल रहे हैं हमें, 8 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 plus 1. So 4 plus 5 9 plus 15, total solutions are 24. 24 solutions are possible. Option C will be the answer, because n was a natural number. ठीक है, अगर नेचुरल नंबर नहीं होता तो n इज इक्वल टू 0 पे भी हमें सॉल्यूशन मिल जाता, अदरवाइज क्योंकि नेचुरल नंबर है इसलिए हमने 1 से स्टार्ट किया है, n इज इक्वल टू 0 भी अदरवाइज एक सॉल्यूशन होता. ओके, सो आंसर्स विल बी 24 इन दिस केस. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. The figure below shows two right angle triangles, triangle OAB and triangle OQP with right angles at vertex A and P respectively. Having the common vertex O, the length of some of the sides are indicated in the figure. Note the figure is not drawn to the scale. AB and OP are parallel. So what is angle OQB? Angle OQB का वैल्यू क्या होगा? What will be angle OQB? That is the question. So क्या कर सकते हैं? We've been given that PQ and एक सेकंड, कौन सी लाइंस पैरेलल है? AB and OP are parallel. OP and AB are parallel. And since these are right angle triangles, this angle is 90. This angle is also 90. ठीक है? So PQ and OA will also be parallel. These lines will also be parallel. So let us extend these lines. Okay. So total length of OA क्या है? That is 4. Let us say this is O, P, Q, O, A, B. Let us say this point is C. So PC value क्या होगा? PC will be equal to OA because this is a rectangle now. So OA, CP, this is a rectangle. So OA will be equal to PC. So PC will also be equal to 4 and PQ is 1, so QC will be 3. Similarly, OP will be equal to AC. So both will be equal to 3. So BC will be equal to 1. Now we can find the side lengths because this will also be a right angle triangle. So in triangle OPQ, OP is 3, PQ is 1. So OQ की वैल्यू क्या हो जाएगा? This will be root 10. Root of 3 square plus 1 square, तो root 10 हो जाएगा. Similarly, BQ, this will be root of 3 square plus 1 square. This will also be equal to 10. So these two
sides are equal for triangle OQB. And third side OB क्या होगा, square root of 4 square plus 2 square, that will be square root of 20. So in triangle OQB, OQ square plus BQ square, so that will be 10 plus 10, this comes out to be equal to 20, which is OB square. So if OQ square plus BQ square, this is equal to OB square, yani ki this is also a right angle triangle, and OB is the hypotenuse. OB is the hypotenuse. So this angle here, this angle will be equal to 90 degree. और क्वेश्चन में OQB एंगल ही तो पूछा है, so that will be 90 degree, ऑप्शन डी. बचे हुए एंगल्स क्या होंगे? So these two angles, since other two sides are equal, this is isosceles right angle triangle, so these angles will be 45 degrees each. Is that clear? ठीक है. So answer will be 90 degrees in this case. Next question. What will be the range of the given sum S if x is a natural number such that x is less than or equal to 100 and S is equal to mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 3 till mod of x minus 100? And we need to find out range of the given sum. Range क्या होगा? S का maximum value minus S का minimum value. So this will be our range. So if we are putting, since x is a natural number, so minimum value of x will be equal to 1. So if x is equal to 1, S हमारा क्या है? S is equal to mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 3 and so on till mod of x minus 100. ठीक है. So if x is equal to 1, at x equal to 1, mod of x minus 1 क्या हो जाएगा? This will be 0 plus 1, mod of x minus 2 will be 1 plus 2 plus 3 and so on till last value will be mod of 1 minus 100, यानी कि mod of minus 99, that will be 99. So 1 to 99 सम आ जाएगा हमारा x equal to 1 पे. x equal to 2 पे the first bracket mod of x minus 1 यानी mod of 2 minus 1, this will be 1 plus next term 0 हो जाएगा और इसके बाद में फिर 1 से स्टार्ट होगा plus 1 plus 2 and so on till 98. x equal to 3 पे पैटर्न देख पा रहे होगे, वैल्यू आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू 2 देन 1 देन 0 फिर 1 से स्टार्ट होगा और लास्ट वैल्यू विल बी 97. सो लार्जेस्ट वैल्यू बेसिकली इज कमिंग आउट टू बी x equal to 1 पे. इजंट इट सो? x equal to 1 पे वैल्यू लार्जेस्ट आ रहा है. क्लियर है? अब बीच में कहीं पे आएगा हमारा x equal to 50 और x equal to 50 पे क्या होगा? x equal to 50 पे फर्स्ट वैल्यू विल बी 49 देन 48 देन 47 एंड सो ऑन और लास्ट वैल्यू क्या आएगा हमारा? लास्ट वैल्यू विल बी 50. 49 48 47 बीच में 0 आएगा फिर 1 से स्टार्ट होगा और टिल 50. ठीक है. सिमिलरली x equal to 51 पे क्या होगा? स्टार्ट होगा 50 से 50 प्लस 49 प्लस 48 एंड सो ऑन, बट एंड होगा अल्टीमेटली जाके 49 पे. तो बेसिकली x equal to 50 और x equal to 51 पे वी विल बी गेटिंग मिनिमम वैल्यू. मैक्सिमम मिलेगा x equal to 1 पे और ऐसे ही मैक्सिमम मिलेगा हमें x equal to 100 पे भी. फाइनली x equal to 100 पे भी हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाला है विच विल बी इक्वल टू 99. जो चीज हमें 0 से 99 तक आए वही 99 प्लस 98 प्लस 97 एंड सो ऑन टिल 0. सो दीज वैल्यूज विल बी मिनिमम. सो किसी भी एक पे वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. मिनिमम वैल्यू आ रहा है हमारा, सॉरी मैक्सिमम, मिनिमम नहीं मैक्सिमम, मिनिमम आएगा हमारा 50 और 51 पे. तो मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है हमें x equal to 1 पे, x equal to 99 पे, मिनिमम मिल रहा है x equal to 50 पे, x equal to 51 पे. ओके. तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा? 1 to 99 का सम. S maximum will be 99 into 100 by 2 and into 100% by 2. मिनिमम वैल्यू क्या आएगा हमारा? मिनिमम वैल्यू विल बी 49 से लेके बीच में आएगा अपना प्लस 1 प्लस 0 और फिर 1 से स्टार्ट होके अल्टीमेटली पहुंचेगा 50 तक. तो 49 से लेके 1 तक का सम प्लस 1 से लेके 50 तक का सम. 49 से 1 तक का सम और 1 से लेके 50 तक का सम. ओके. सो क्या वैल्यू आएगा? 49 से 1 तक का सम क्या होगा? दैट विल बी 49 into 50 by 2.
प्लस 1 से 50 तक का सम 50 इंटू 51 by 2. Okay, so 99 into 100 by 2 will be 4950. This will be 4950 minus this sum will be 50, तो कॉमन आ गया 50 by 2. 49 plus 51 will be 100, तो 100 into 50 by 2 यानी 100 into 25, this will be 2500 and result will come out to be 2450. This will be the difference and hence range. 2450 will be the answer, option C. Option C will be the answer in this case. Clear? ठीक है. Next question. Let S1, S2 be the squares such that for each n greater than or equal to 1, the length of the diagonal of Sn is equal to length of the side of Sn plus 1. Length of the side of S3 is 4 cm. If a circle circumscribing square Sn is drawn, then find its radius in centimeters. Find its radius in centimeters. So basically, if you draw a square, and if in that square one side length is equal to 1, all sides are equal, all sides will be equal to 1. तो diagonal का length क्या होगा? Diagonal length will be root 2. And question is saying if a circle circumscribing square Sn is drawn, तो radius of the circle. ठीक है, तो अगर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे which circumscribes this square, so diagonal of the square will be diameter of the circle. Diagonal will be diameter of the circle, तो radius of the circle क्या हो जाएगा? Radius in that case will be equal to root 2 divided by 2, because this is also radius, this is, तो root 2 is equal to 2 times r, radius will be root 2 divided by 2, यानी कि 1 by root 2 when side length is equal to 1, or in general radius will be equal to side upon root 2. Isn't it so? और गिवन हमें क्या है? S3 का साइड लेंथ गिवन है, तो फॉर S3 साइड लेंथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. सो इफ साइड लेंथ इज 4, डायगोनल क्या होगा? डायगोनल होगा रूट 2 टाइम्स, तो डायगोनल विल बी 4 रूट 2. बट अगर S3 के लिए हम सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल का रेडियस देखेंगे तो क्या आएगा? रेडियस ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल विल बी side upon root 2, यानी 4 by root 2. So this will be 2 root 2. Isn't it so? और क्या S3 से हम S1 के लिए यही सेम वैल्यूज निकाल सकते हैं? बिकॉज क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ Sn इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द साइड ऑफ Sn प्लस 1, यानी कि फॉर S4 साइड लेंथ क्या होगा? 4 रूट 2. सो बेसिकली अगर साइड लेंथ से कनेक्शन देखो तो साइड लेंथ बिकम्स रूट 2 टाइम्स फॉर S4, रूट 2 टाइम्स हो जाएगा. Isn't it so? सो अगर 4 सेंटीमीटर है फॉर साइड लेंथ फॉर S3, तो S2 का साइड लेंथ क्या होगा? 4 डिवाइडेड बाई रूट 2, यानी कि दिस विल बी 2 रूट 2. और अगर 2 रूट 2 साइड लेंथ है तो डायगोनल क्या हो जाएगा? 2 रूट 2 इंटू रूट 2 टाइम्स, दैट विल बी इक्वल टू 4, जो पैटर्न होना चाहिए हमारा. ठीक है, सिमिलरली S1 के लिए साइड लेंथ क्या हो जाएगा? साइड लेंथ विल बी 2, एंड इफ साइड लेंथ फॉर S1 इज 2, तो रेडियस क्या होगा? रेडियस विल बी 2 अपॉन रूट 2, रूट 2 होगा फॉर S1. S2 के लिए दिस विल बी 2 और डायगोनल विल बी 2 रूट 2. इज दैट क्लियर? क्वेश्चन ये पूछ रहा था हमसे एग्जैक्टली कि इफ अ सर्कल सर्कल स्क्वायर Sn इज ड्रॉन, तो स्क्वायर Sn के लिए रेडियस क्या होगा? S1 के लिए रेडियस इज रूट 2, S2 के लिए रेडियस इज 2, S3 के लिए 2 रूट 2 एंड सो ऑन. सो एक जीपी बन रहा है, हमारा फॉर्म हो रहा है. Sn के लिए क्या होगा? फर्स्ट टर्म है हमारा रूट 2, Sn के लिए होगा फर्स्ट टर्म हमारा रूट 2 है, रूट 2 2 2 रूट 2 एंड सो ऑन. तो a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 एंड अ टर्म ऑफ द जीपी. यहाँ पे r क्या है? दिस r इज कॉमन रेशियो, दिस r इज कॉमन रेशियो, दिस r इज नॉट रिलेटेड टू रेडियस. ठीक है, इसको रेडियस वाले को कैपिटल R कर देते हैं. ओके, तो फर्स्ट टर्म हमारा रूट 2 है और कॉमन रेशियो इज ऑल्सो रूट 2, तो रूट 2 into root 2 to the power n minus 1, that will be radius for the
circle circumscribing square Sn. So this will be root 2 to the power n, which is equal to 2 to the power n upon 2. Answer will be 2 to the power n upon 2. अगर साइड लेंथ पूछा होता तो साइड लेंथ तो इजी था, S1 के लिए आया 2 और यहाँ भी कॉमन रेशियो तो 2 ही है हमारा, तो Sn के लिए साइड लेंथ विल बी 2 इंटू रूट 2 टू द पावर n माइनस 1, 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2. सो बेसिकली दिस बिकम्स 2 टू द पावर 1 प्लस n माइनस 1 बाई 2, तो कॉमन आ जाएगा. सो 2 टू द पावर n प्लस 1 बाई 2 विल बी द साइड लेंथ फॉर nth स्क्वायर, और डायगोनल भी रूट 2 टाइम्स ऑफ दैट, तो डायगोनल हो जाएगा 2 टू द पावर n प्लस 2 बाई 2, डायगोनल हो जाएगा 2 टू द पावर n बाई 2 प्लस 1, या फिर कह सकते थे और 2 टू द पावर n प्लस 2 बाई 2. तो जो भी क्वेश्चन पूछता उसके हिसाब से हम आंसर कर सकते थे. इज दैट क्लियर? इजंट इट सो? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. In a group of students, X number of students drink only fruit juice, 2X number of students drink only Coke, 57 by X students drink both fruit juice and Coke, and the students who drink neither fruit juice nor Coke are 57 by 3X. So number of students who drink Coke may be. Question is saying may be, यानी कि possible values. Fruit juice and Coke. The students who drink only fruit juice are X. Those who drink only Coke are 2X. And those who drink both are 57 by X. And those who drink neither are 57 by 3X. And we have to tell about possible values. अब देखो 57 by x हो या 57 by 3x हो, both these will be integers. x और 2x भी इंटीजर होंगे, ठीक है. सो ऑल वैल्यूज शुड बी इंटीजर. क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, फ्रैक्शन थोड़ी हो सकता है. और 57 इज इक्वल टू 3 इंटू 19. 3 इंटू 19. सो इफ x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 होगा तब तो 57 by x हमारा 57 होगा, 57 by 3x हमारा 19 होगा. सो दीज वैल्यूज विल बी इंटीजर फॉर x इक्वल टू 1. x कैन बी इक्वल टू 1, ठीक है. x कैन बी इक्वल टू 1. और क्या x इक्वल टू 3 हो सकता है? इफ यू पुट x इक्वल टू 3 तो 57 by 3x, 57 by 9, दिस विल नॉट बी इंटीजर. तो 3 नहीं हो सकता, बिकॉज जब x इक्वल टू 3 होगा 57 by 3x विल नॉट बी इंटीजर, बिकॉज हम फैक्टर्स ही देख रहे हैं 57 के. बिकॉज 57 by x and 57 by 3x, these should be integers, ठीक है. 1 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता. 19, if you put x equal to 19, 57 by 19 is equal to 3, 57 by 57 is equal to 1. So this is also possible. And definitely 57 तो नहीं हो सकता, because 57 होने पे 57 by 3x will be 1 by 3. So only two values possible are x equal to 1 and x equal to 19. So two values possible होगा. If x is equal to 1, तो number of students who drink Coke, एक सेकेंड, हाँ कोक यानी टोटल वैल्यू हमें चाहिए. तो x इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा? 2x प्लस 57 बाई x है. सो दैट विल बी 2 इंटू 1 प्लस 57 बाई 1 विच इज इक्वल 59. 59 हो जाएगा. और x इक्वल टू 19 पे 2x विल बी 2 इंटू 19 प्लस 57 बाई 19. सो 38 प्लस 3 यानी 41. सो ईदर number of students who drink Coke can be 59 or 41. 41 or 59 are the possible values. Option D will be the answer. 41 and 59 will be the answer. Clear है? ठीक है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. A tank internally measuring 150 centimeter cross 120 centimeter cross 100 centimeter has 1281600 centimeter cube water in it. 12,81,600 centimeter cube water in it. Porous bricks are placed in the water until the tank is full up to its brim. Each brick absorbs 1/10 of its volume of water.
यानी कि जितना वॉल्यूम है ब्रिक का उसका 1/10 वाटर भी अब्जॉर्ब कर लेता है. सो हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ 20 क्रॉस 6 क्रॉस 4 कैन बी पुट इन द टैंक विदाउट स्पिलिंग ओवर द वाटर. कितने ऐसे ब्रिक्स को हम पुट कर सकते हैं सो दैट द वाटर इज नॉट स्पिल्ड. So it already has some water. And total volume कितना है? Because initial volume हमें internal measurement दिया है. Total volume कितना हो जाएगा? Total volume of tank. This will be 150 into 120 into 100. So 15 into 12, 180 followed by 4 zeros. So 18 lakh centimeter cube. And 12,81,600 सेंटीमीटर क्यूब तो वाटर ऑलरेडी है. तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो रिमेनिंग वॉल्यूम मिल जाएगा. सो 18 lakhs minus 12,81,600, this will be 5,18,400 सेंटीमीटर क्यूब. $5,18,400 centimeter cube. This much volume is remaining in the tank. Okay. And एग्जाम्पल के लिए पहले समझ लेते हैं, बिकॉज क्वेश्चन ये कह रहा है कि पोरस ब्रिक्स हैं एंड ईच ब्रिक एब्जॉर्ब्स 1/10 ऑफ इट्स वॉल्यूम. ब्रिक एब्जॉर्ब्स 1/10 ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी इफेक्टिवली इफ वी आर पुटिंग 10 ब्रिक्स, ठीक है, लेट अस से एक एग्जांपल ले लेते हैं. देखो 100 ml लेट अस से एक हमारा जार है जिसमें वी हैव 100 ml वाटर ऑलरेडी, या 100 सेंटीमीटर क्यूब. ml and centimeter cube are one and the same, so 100 centimeter cube is the water. And now in this jar we are putting one brick, and this is also similar brick है, इसका डायमेंशन अलग है. सो एक ब्रिक पुट कर रहे हैं जिसका कि वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब. अब जैसे ही तुम ये ब्रिक पुट करोगे इस वाटर के अंदर, इफ दिस वाज नॉट अ पोरस ब्रिक, अगर ये पोरस ब्रिक नहीं होता तो वॉल्यूम हमारा 10 सेंटीमीटर क्यूब से इंक्रीज कर जाता. ऑलरेडी 100 था, तो it would have increased by 10. But since this brick is porous, तो ये ब्रिक जैसे ही पानी में जाएगा this will absorb water, and water absorbed by this brick is 1/10 of volume of the brick. तो जैसे ही ये ब्रिक वाटर के अंदर जाने वाला है, इसका वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है. जैसे ही वाटर के अंदर जाएगा this will absorb 1 ml of water. So 1 ml वाटर को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, या 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा. So if this is going to absorb 1 centimeter cube water, तो उतना वाटर कम हो जाएगा. So initially वाटर था 100 सेंटीमीटर क्यूब, अब वाटर 1 सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज कर जाएगा, और ब्रिक का वॉल्यूम तो अपना 10 है ही है, ठीक है. सो 100 माइनस 1 प्लस 10, यानी कि न्यू वॉल्यूम इनसाइड द टैंक विल बी 99 सेंटीमीटर, 99 नहीं, 100 माइनस 1 प्लस 10, 109 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा. 109 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा. इनिशियली था 100 और अब 10 सेंटीमीटर क्यूब का तुमने ब्रिक डाला, बट इंक्रीज कितना हुआ है वॉल्यूम में? 9 सेंटीमीटर क्यूब का इंक्रीज हुआ है, 9 का, जबकि तुमने डाला है 10 सेंटीमीटर क्यूब का ब्रिक. और इंक्रीज 9 का क्यों हुआ है? बिकॉज 1/10 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक, उतना वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया है ब्रिक ने. इज दैट सो? क्या ये पार्ट क्लियर है? सो इफेक्टिवली इफ वी आर गोइंग टू पुट V वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, तो कितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा? वॉल्यूम इंक्रीज विल बी 9/10 ऑफ V, बिकॉज ये टोटल V वॉल्यूम ब्रिक अगर सारे के सारे पोरस नहीं होते, परफेक्टली सॉलिड होते, तो इन दैट केस V का ही इंक्रीज करते, बट दे आर एब्जॉर्बिंग 1/10 ऑफ द वाटर. सो ये जो 1/10 वाटर है, देखो ब्रिक की वजह से इंक्रीज तो V का ही आ रहा है, बट 1/10 वाटर इनसाइड द ब्रिक एब्जॉर्ब हो जाएगा. सो 1/10 वाटर का डिक्रीज आएगा, तो प्लस V माइनस V/10 हो रहा है इफेक्टिवली. सो दैट इज वाई नेट चेंज कितना आ रहा है? 9/10 V का नेट चेंज आ रहा है, 9/10 V का. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है. तो एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना है? दैट वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक इज 20 into 6 into 4. सो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू 20 into 6 into 4, दैट इज 480 सेंटीमीटर क्यूब. 480 सेंटीमीटर क्यूब. लेट अस से n ब्रिक्स हम पुट कर सकते हैं, तो उसकी वजह से ये बचा हुआ वॉल्यूम ही तो फिलअप होगा. Isn't it so? तो n ब्रिक्स हम पुट कर सकते हैं. वन ब्रिक का वॉल्यूम है 480 into n, बट ड्यू टू वन ब्रिक चेंज कितना आएगा?
अगर V वॉल्यूम है ब्रिक का तो चेंज आएगा हमारा टोटल 9/10 V का, चेंज आएगा 9/10 की V का, तो मल्टीप्लाई बाय 9/10, so into 9/10 this will be equal to 518400. ठीक है, सो 0 से गया 0, 9, 5 जार 45, फिर बचा 68, 9 7 जार 63, 57600, 24 से 2 टाइम्स जाएगा और दिस विल बी 2400. बेसिकली n इज इक्वल टू 1200 आंसर आ जाएगा. The answer will be n is equal to 1200. Is this clear? Option B will be the answer. Okay. ठीक है. और ये क्यों हुआ? क्योंकि बेसिकली व्हेन वी आर पुटिंग दिस मच वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स 480 इंटू n, सो ब्रिक्स की वजह से इतना वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज ड्यू टू ब्रिक्स, बट डिक्रीज भी तो कर रहा है वाटर का वॉल्यूम, जितना एब्जॉर्ब हो जाएगा. सो इसका 1/10 एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो 480 इंटू n बाई 10, वॉल्यूम डिक्रीज ड्यू टू एब्जॉर्ब्ड वाटर. दैट इज वाई नेट में कितना बन रहा है हमारा 480 इंटू n इंटू 9/10. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अमन एंड रमन Aman and Raman take the square of a certain number represented in decimal system and express it in base 5 and 6 respectively. So they are taking a square of a certain number and represent it in decimal system in base 5 and base 6. Base 5 में अमन ने लिखा है, base 6 में रमन ने लिखा है. Then Chintu comes and adds up the new numbers found by Aman and Raman, considering them as the numbers in the decimal system. चिंटू को समझ में नहीं आया कि these numbers are in base 5 and base 6. उसने ऐसे ही ऐड किया जैसे कि these numbers are in base 10 only. So which of the following cannot be the value of the unit digit of the sum obtained? Now take your time, try to solve this question. ठीक है, try to understand the language and whatever you can solve in this question. जो क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे स्क्वायर ऑफ अ सर्टेन नंबर. ठीक है, सो स्क्वायर ऑफ अ सर्टेन नंबर और उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेस 5 में एंड बेस 6 में. नाउ दीज नंबर्स चिंटू ऐड कर रहा है, चिंटू इज एडिंग दीज नंबर्स कंसिडरिंग दीज नंबर्स इन डेसिमल सिस्टम. सो वो फॉलो करेगा सारे के सारे रूल्स डेसिमल सिस्टम के. और क्वेश्चन फिर अल्टीमेटली पूछा विद द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ द यूनिट्स डिजिट, यानी कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पे हमारा जो कंसर्न है दैट इज यूनिट डिजिट ऑफ द वैल्यूज. ओके, सो इफ यू आर स्क्वायरिंग अ नंबर फॉर एनी परफेक्ट स्क्वायर, और जब भी पैटर्न देखना हो हमेशा स्क्वायर के लिए क्या करोगे, यूनिट डिजिट के लिए ऑब्जर्व फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स. ठीक है, तो 1 का स्क्वायर में क्या आएगा, यूनिट डिजिट 1 आएगा. 2 के स्क्वायर में 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 है, यूनिट डिजिट तो 6 ही रहेगा. 5 स्क्वायर 25, यूनिट डिजिट 5, 6 स्क्वायर 36, यूनिट डिजिट 6, 7 स्क्वायर 49, यूनिट डिजिट 9, 8 स्क्वायर 64, यूनिट डिजिट 4, 9 स्क्वायर 1, 81 1 आएगा, और 10 स्क्वायर में 0. यानी कि बेसिकली देयर इज अ क्लियर पैटर्न, और इसके बाद में ये चीजें रिपीट होनी है. यानी कि इफेक्टिव यूनिट डिजिट पे वी विल बी गेटिंग इन एनी स्क्वायर यूनिट डिजिट पे क्या क्या वैल्यूज हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 1, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 हो सकता है, 0 1 4, और मे बी 5, और मे बी 6, और मे बी 9. सो दीज आर पॉसिबल unit digit values in a square. Possible unit digit values in a perfect square. Isn't it so? और अगर बेस 5 में हम लिखने वाले हैं इस नंबर को, किसी भी बेस में जब किसी नंबर को लिखते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम डेसिमल सिस्टम में लिखते हैं नंबर को, तो डेसिमल सिस्टम में इफ यू आर राइटिंग अ नंबर, डेसिमल सिस्टम में तो हम लिखते ही रहते हैं. लेट अस से हमने लिखा 123. सो 123 यूनिट पे फोकस करो, यूनिट क्या है, 3 है, 3 इज यूनिट डिजिट. एंड इफ यू आर डिवाइडिंग दिस नंबर 123 बाय 10,
तो रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे 10 क्या है, 10 इज बेस वैल्यू, बेस है ना हमारा डेसिमल सिस्टम का, बेस इज 10, 123 डिवाइड बाय 10 विल गिव अस रिमाइंडर इक्वल टू 3, विच इज द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर, विच इज यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर। कभी भी कोई भी नंबर हमारा जो डेसिमल सिस्टम में लिखा होगा, इफ यू आर डिवाइडिंग दैट नंबर बाय 10, योर रिजल्टेंट रिमाइंडर विल ऑलवेज बी द यूनिट डिजिट। अगर यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है यानी कि दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 10, इजंट इट सो? तो सेम चीज लॉजिक होगा, सेम अप्लाई होगा लॉजिक इन बेस 5 एंड बेस 6 एज वेल। सो इफ देयर इज अ नंबर दैट इज रिटन इन बेस 5, ठीक है, इफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5, तो इन बेस 5 में यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 5, तो बेस 5 रिप्रेजेंटेशन जो करोगे यूनिट डिजिट हमारा 0 होगा। और बेसिकली यूनिट डिजिट in any base gives value of remainder when dividing by base, when dividing by base, okay? So now observe these numbers 0, 1, 4, 5, 6 and 9. So base 5 में if you are going to write any such perfect square, तो रिमाइंडर की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, व्हाट कैन बी द रिमाइंडर वैल्यूज, रिमाइंडर पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं? देखो, इफ यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 0 और यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 5, तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5, एंड इफ दैट इज डिविजिबल बाय 5, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0, isn't it so? सेकंड केस, इफ यूनिट डिजिट इज 1 और 6, तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा। थर्ड केस, व्हेन यूनिट डिजिट इज 4 और 9, तो रिमाइंडर विल बी 4, या तो रिमाइंडर 0 होगा या 1 होगा या फिर 4 होगा। तो बेस 5 में तीन ही पॉसिबल केसेस हैं, इधर रिमाइंडर विल बी 0 और 1 और 4, isn't it so? क्या है क्लियर? सो 5 में तो हमें चीजें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं बेस 6 की, बेस 6 की बात करते हैं। So for base 6, in general, if you are writing any number, so either the number will be a multiple of 3, any number will be a multiple of 3, or this will be one more than a multiple of 3, or this will be two more than a multiple of 3, या फिर 2 more than को कह सकते हो, 3k plus 2 कह सकते हो, और you can write this as 3k plus 3 minus 1, और बेसिकली एक 3 के मल्टीपल से 1 लेस हो गया, ठीक है, 3k plus 2 और 3k plus 3 minus 1, और बेसिकली दिस इज 3 का मल्टीपल -1, ठीक है, क्या ही कह सकते हो? सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नंबर्स, ईदर दैट इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3, और 3 का मल्टीपल +1, और 3 का मल्टीपल -1। इसके अलावा तो कोई पॉसिबल केस है नहीं। अब इनको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर दीज वैल्यूज, तो स्क्वायर करने पे परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर हमारा 3k का स्क्वायर विल बी 9k स्क्वायर, 3k plus 1 square will be 9k square plus 6k plus 1, and 3k minus will be 9k square minus 6k plus 1। और अब बेस 6 से रिमाइंडर चेकआउट करते हैं। सो इफ आवर नंबर इज 9k स्क्वायर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 9, सो अगर 9 का मल्टीपल है तो रिमाइंडर क्या देगा, व्हेन वी आर डिवाइडिंग बाय 6, तो 9k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर अब 9 का मल्टीपल है, सो इधर दिस विल बी मल्टीपल ऑफ 6 एज वेल, या फिर रिमाइंडर 3 देगा भाई, या तो 6 का मल्टीपल होगा या रिमाइंडर 3 देगा। सो रिमाइंडर विल बी इधर 0 और 3, 0 और 3। इन बाकी केसेस में देख लो, तो दिस इज 9k स्क्वायर प्लस माइनस 6k प्लस 1, तो 9k स्क्वायर वाला पार्ट तो हमें रिमाइंडर 0 देगा या फिर 1 देगा। 6k ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ये पार्ट तो हमें रिमाइंडर 0 ही देने वाला है, बिकॉज दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 6, और 1 तुम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, सॉरी 0 या फिर 3 दे रहा था, 1 एक्स्ट्रा ऐड करो तो 1 तो 1 ही रिमाइंडर देगा, यानी इफेक्टिवली फॉर दीज नंबर्स 9k स्क्वायर प्लस माइनस 6k प्लस 1 व्हेन वी आर डिवाइडिंग बाय 6, रिमाइंडर विल बी 0 प्लस 1 और 3 प्लस 1, यानी कि 1 और 4, रिमाइंडर विल बी 1 और 4, क्लियर है? तो बेस 6 में एनी परफेक्ट स्क्वायर विल गिव अस रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर वैल्यूज विल बी ईदर 0 और 1 और 3 और 4, 0 1 3 4, these are the possible cases,
बेस 6 में दीज आर द पॉसिबल केसेस 0, 1, 3 एंड 4. इजंट इट सो? ठीक है, अब दोनों बातों को एक साथ लिखते हैं. तो बेस 5 में रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज हमारी 0, 1 एंड 4. बेस 6 में द पॉसिबिलिटीज ऑफ रिमाइंडर आर 0, 1, 3 एंड 4. एंड क्वेश्चन आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ द यूनिट. अब दोनों को तुम ऐड कर दोगे, तो ऐड करने से तुम्हें क्या क्या मिल सकता है? 0 + 0 से 0 मिल जाएगा, तो 0 मिलना पॉसिबल है. 0 + 1 से 1 मिल जाएगा. 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है. 0, 1, 3 एंड 4 आर पॉसिबल. ठीक है, तो 3 तो पॉसिबल है, और पॉसिबल है इसलिए आंसर नहीं होगा. अच्छा, 4 + 4 से 8 मिल जाएगा, तो 8 इज ऑल्सो पॉसिबल, सो आंसर नहीं हो सकता. 1 + 1 से 2 मिल जाएगा, तो 2 इज ऑल्सो पॉसिबल, इसलिए आंसर नहीं हो सकता. बट 6 कैसे भी नहीं मिलेगा, बिकॉज 1 + 5 5 है नहीं. ठीक है, 2 + 4 2 भी नहीं है, सो 6 इज नॉट पॉसिबल, हेंस दैट मस्ट बी द आंसर. दिस इज नॉट पॉसिबल. ओके, क्लियर है? 6 इज नॉट पॉसिबल. ओके, 9 is also not possible as such. ना तो 6 पॉसिबल है, ना ही 9 पॉसिबल है. तो दिस विल बी द आंसर. क्या लॉजिक समझ में आता है? ओके, सो दैट विल बी द आंसर. इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A manufacturer produces two types of products, products A and B, which are subjected to two types of operations, grinding and polishing. Each unit of product A takes 2 hours of grinding and 3 hours of polishing, whereas product B takes 3 hours of grinding and 2 hours of polishing. The manufacturer has 10 grinders and 15 polishers. Each grinder operates for 12 hours per day and each polisher operates for 10 hours per day. The profit margin per unit of A and B are ₹5 and ₹7 respectively. If the manufacturer utilizes all his resources for producing these two types of items, then what is the maximum profit that the manufacturer can earn? Maximum profit that manufacturer can earn. ठीक है, अगर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो देखो क्वेश्चन साफ साफ हमें बता रहा है प्रॉफिट मार्जिन पर यूनिट ऑफ ए एंड बी आर ₹5 एंड ₹7. ज्यादा प्रॉफिट कहां पे हो रहा है? मोर प्रॉफिट इज इन प्रोडक्ट बी इन कंपेरिजन प्रोडक्ट ए. So to maximize the profit, the manufacturer will try to maximize production of product B, because product B में प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो पर्पस तो यही होगा, isn't it so? ठीक है, कि B को जितना ज्यादा प्रोड्यूस कर सके, बट देयर इज अ लिमिट, बिकॉज कंडीशंस भी हमें गिवन है. ग्राइंडिंग कितना आवर्स ले रहा है, पॉलिशिंग कितना आवर्स ले रहा है फॉर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली. सो इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करके प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं इसको. सो फॉर प्रोडक्ट ए एंड बी, ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग दो तरह के ऑपरेशंस हैं जो कि होने हैं, ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग. एंड ईच यूनिट प्रोडक्ट ए takes 2 hours of grinding, 2 hours grinding and 3 hours polishing. While product B, this is opposite, 3 hours grinding and 2 hours polishing. And manufacturer has in total 10 grinders. 10 grinders are there and 15 polishers. And each grinder operates for 12 hours per day. 12 hours per day. And each polisher operates for 10 hours per day. एक डे में कितना ग्राइंडिंग वर्क हो सकता है? 10 into 12 120 hours. और पॉलिशिंग वर्क हो सकता है 50 into 10 150 hours. 120 hours grinding, 150 hours polishing in total. Now let us assume कि A number of product A are manufactured in a day and B number of product B are manufactured in a day. A number of product A are manufactured and B number of product B are manufactured. Also profit given is ₹5 for product A, profit margin, and for product B this is ₹7. So ये तो सारा के सारा गिवन डेटा हो गया हमारा. ओके, एक केस हम ले लेते हैं कि सारे के सारे हम प्रोडक्ट बी को प्रोड्यूस करें
इफ वी प्रोड्यूस ऑल प्रोडक्ट बी, सारे के सारे प्रोडक्ट बी प्रोड्यूस करें, प्रोडक्ट ए को प्रोड्यूस ना ही करें, सारे के सारे प्रोडक्ट बी को प्रोड्यूस करें, कितने मैक्सिमम प्रोडक्ट बी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितना मैन्युफैक्चर कर सकते हैं एट द मैक्स? सो फॉर प्रोडक्ट बी वी नीड पॉलिशिंग ऑफ 3 hours. Sorry. For product B we need grinding of 3 hours and polishing of 2 hours. So if you are producing all product B, so as per the grinding 120 hours total available है, 3 hours लग रहा है A प्रोडक्ट में, तो 120 by 3 कितने प्रोड्यूस होंगे? 40. एज पर द पॉलिशिंग 150 by 2 75. बट लिमिट क्या होगा, जिससे मिनिमम होगा, यानी कि ओनली 40 प्रोडक्ट बी यूनिट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन टोटल. तो 40 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, 40 यूनिट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड और पर यूनिट इज प्रॉफिट ₹7. तो 40 into ₹7 टोटल प्रॉफिट विल बी ₹280. इफ वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस ऑल बी देन प्रॉफिट विल बी ₹280. अब एक बार ए वाला केस भी देख लेते हैं. इफ यू आर प्रोड्यूसिंग ऑल ए, तब कितना प्रॉफिट होगा? अब ए के लिए लिमिट क्या होगा, क्योंकि ज्यादा टाइम लग रहा है पॉलिशिंग में, और ए के लिए लिमिट क्या होगा अल्टीमेटली? इफ ग्राइंडिंग वर्क देखें 120 by 2 विल बी 60 यूनिट्स कैन बी प्रोड्यूस, 150 by 3 इज 50, यानी कि एट मैक्स हम 50 प्रोड्यूस कर पाएंगे. ये बाई 120 by 2 इज गिविंग अस 60 यूनिट्स, बट 150 by 3 इज गिविंग अस 50 यूनिट्स, यानी कि मैक्सिमम 50 प्रोड्यूस कर पाएंगे, बिकॉज लिमिट क्या होगा, जहां पे कम प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो 50 यूनिट्स कैन बी प्रोड्यूस, 50 into 5, यानी कि टोटल प्रॉफिट कैन बी ₹250. सो इफ वी आर प्रोड्यूसिंग ऑल ए, ओनली ₹250 विल बी प्रॉफिट, ऑल बी पे ₹280 का प्रॉफिट होगा, यानी कि उस केस में प्रेफरेबल क्या है, ऑल बी. 250 तो डेफिनेटली आंसर नहीं होगा. ठीक है, सो ये तो एक हमें क्लियर गाइडलाइन मिल गया कि इफ वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस ऑल बी तो ₹280 का प्रॉफिट होने वाला है. बट क्या ये ऑप्टिमम है? इज दिस द मैक्सिमम वैल्यू, या मैक्सिमम वैल्यू कहीं बीच में लाई करेगा? बिकॉज व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग ऑल बी, हो क्या रहा है, देखो ध्यान से बात को समझना. व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग ऑल बी, तो अल्टीमेटली इन दैट केस हम कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं? इन दैट केस वी आर प्रोड्यूसिंग ऑल बी, तो अल्टीमेटली 40 यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि 120 आवर्स का ग्राइंडिंग तो यूज कर ले रहे हैं हम, 120 आवर्स का ग्राइंडिंग तो यूज कर ले रहे हैं, बट पॉलिशिंग में कितना आवर्स हमारे कंज्यूम हो रहे हैं? टोटल 2 into 40 80 आवर्स कंज्यूम हो रहे हैं. यानी जो पॉलिशिंग मशीन है दैट कैन स्टिल प्रोड्यूस 70 आवर्स मोर का प्रोडक्शन, बट बी तो और प्रोड्यूस नहीं कर सकता वो, बिकॉज बी के लिए तो लिमिट है. तो अगर हम ए और बी का एक कॉम्बिनेशन अप्लाई करें, यानी कि सम ए एंड सम बी, जहां से प्रॉफिट हमारा मैक्सिमाइज हो सके, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल कि ₹280 से ज्यादा का प्रॉफिट हो पाए. Isn't it so? क्या ये बात समझ पा रहे हो? अगर हम ए और बी का एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन यूज करें तो प्रॉफिट को अपने मैक्सिमाइज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ओनली बी प्रोडक्शन के. हाँ, बी के प्रोडक्शन में प्रॉफिट ज्यादा है, बट अगर बी के प्रोडक्शन की वजह से हमारा बहुत सारा जो रिसोर्स है वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन भी कह रहा है कि द मैन्युफैक्चरर यूटिलाइजेस ऑल हिज रिसोर्सेज, क्योंकि हमारा जब हम सारे के सारे बी प्रोड्यूस करें तो वी आर नॉट यूटिलाइजिंग ऑल द रिसोर्सेज, तो वी हैव टू ट्राई टू यूटिलाइज ऑल द रिसोर्सेज एज मच एज पॉसिबल टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. तब देखते हैं कि क्या हमारा प्रॉफिट आता है. ओके, so let us assume कि A units of A are being produced and B units of product B are being produced. और प्रोडक्ट A पे कितना ग्राइंडिंग का टाइम लगेगा? 2 hours का, 2 hours का टाइम लगेगा. सो टोटल ग्राइंडिंग का टाइम हमारे पास अवेलेबल कितना है? 120 आवर्स का. तो 2A विल बी टाइम इन ग्राइंडिंग फॉर प्रोडक्ट A एंड 3B विल बी टाइम इन ग्राइंडिंग फॉर प्रोडक्ट B. तो 2A plus 3B, this will be total grinding time and this should be less than or equal to 120. मैक्सिमम 120 आवर्स हो सकता है. 2A plus 3B लेस देन इक्वल टू 120. सिमिलरली फॉर पॉलिशिंग 3 hours फॉर प्रोडक्ट A, तो 3A टोटल पॉलिशिंग टाइम फॉर प्रोडक्ट A और 2B टोटल पॉलिशिंग टाइम फॉर प्रोडक्ट B एंड दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 150. दो इक्वेशन हमारी बन गई. 2A plus 3B लेस देन इक्वल टू 120. दिस वाज फॉर ग्राइंडिंग. और पॉलिशिंग के लिए इक्वेशन हमारा हो गया 3A plus 2B लेस देन इक्वल टू 150. ओके, क्लियर है? नाउ सिंस बोथ द इक्वेशंस आर इन लेस देन इक्वल टू, ऐसे समझो कि इफ वी हैव अ इक्वेशन कि a इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड b इज लेस देन इक्वल टू 7, सो वी कैन ऐड दीज टू इक्वेशंस दैट a plus b विल बी लेस देन इक्वल टू 12. दिस इज परफेक्टली फाइन. बट अगर एक इक्वेशन का है a इज लेस देन इक्वल टू 5 और दूसरी क्या है b इज लेस देन b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तब फिर हम इनको ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ऐड करके हम डेफिनेटली नहीं बता पाएंगे कि हमारा रेंज क्या होगा, क्योंकि एक वैल्यू लेस देन इक्वल टू, दूसरा ग्रेटर देन इक्वल टू. हाँ, दोनों लेस देन इक्वल टू पे हैं या दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू है तब चलेगा. ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी कैन ऐड दीज टू इक्वेशंस एंड वी कैन से 2A plus 3A 5A plus 3A plus 3B plus 2B 5A plus 5B is less than equal to 270.
और डिवाइड बाई 5, तो a प्लस बी इज लेस देन इक्वल 54. a plus b is less than equal to 54. Is that clear? ठीक है, तो 2a plus 3b is less than equal to 120. a plus b है less than equal to 54, तो 2a plus 2b will be less than equal to 108, और 2a plus 3b is less than equal to 120. सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो b will be less than equal to 12. b will be less than equal to 12. तो हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज दे सकते हैं, a प्लस बी लेस देन इक्वल 54 होना चाहिए, b लेस देन इक्वल 12 होना चाहिए, बट मैक्सिमाइज करना है हमें प्रोडक्शन को, तो b इक्वल टू 12 ले लें और a इक्वल टू 42 ले लो. दिस कुड बी द केस, a इज इक्वल 42 एंड b इज इक्वल 12. इजंट इट सो? ठीक है, तो हमने ऑप्शन ले लिया कि वी हैव प्रोड्यूस्ड 42 यूनिट्स ऑफ a एंड 12 यूनिट्स ऑफ b. एंड इफ दैट इज द केस, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा, 42 इंटू 5 प्लस 12 इंटू 7, दैट विल 210 प्लस 84, यानी कि 294 रुपीज. एंड सिंस दिस इज इन एग्जिस्टिंग कंडीशंस, तो ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग दोनों का हमने ऑप्टिमम यूज किया है, सो दिस इज द बेस्ट आंसर. 294 रुपीज कैन बी द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट मैन्युफैक्चरर कैन अर्न. ऑप्शन बी विल बी द आंसर हो जाएगा. इज दिस क्लियर? अब यहां पे हम जस्ट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करें कि 41 यूनिट्स हम ए प्रोड्यूस करें और 12 की बजाय 13 यूनिट्स, यानी कि 1 यूनिट ए की बजाय 1 यूनिट बी को प्रोड्यूस करें, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? विल दिस बी पॉसिबल? अगर हमें ऐसा करना है तो ए के लिए ग्राइंडिंग वर्क कितना लगेगा हमारा, ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग. ए पे ग्राइंडिंग लग रहा है 2 आवर्स और पॉलिशिंग लग रहा है 3 आवर्स, यानी 41 82 और 123. और बी पे ग्राइंडिंग पॉलिशिंग कितना लगेगा, बी पे ग्राइंडिंग लगेगा 3 आवर्स 39 और पॉलिशिंग लगेगा 2 आवर्स 26. तो 123 प्लस 26, दिस इज कमिंग आउट टू 149, और पॉलिशिंग करें 150 आवर्स हमारे पास अवेलेबल है, दिस इज फाइन. बट ग्राइंडिंग में वर्क कितना हो जाएगा, 82 प्लस 39 विच विल बी 121. बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मैक्सिमम 120 हो सकता है. तो दैट इज वाई अब एक यूनिट भी हम ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते ऐसे. दिस इज द परफेक्ट केस, ऑप्टिमम केस, जो हमने इक्वेशन से फाइंड आउट किया. क्या ये लॉजिक क्लियर है? Okay, so in this case answer will be 294 rupees and this is that PYQ only. Is that clear? The answer for such a question will be solved in this manner by optimizing our solution. Okay. हाँ, कभी क्वेश्चन थोड़ा और डिफिकल्ट बनाना होगा तो ऐसा ही पॉसिबल हो सकता है कि ऑप्टिमम केस बनाने के टाइम पे फिर हमें लास्ट में 1 और 2 का ट्वीक करना पड़े, बिकॉज डिपेंड पड़ा कि थोड़ा हमारे रिसोर्सेज बच जा रहा हो. So that is also possible. For example, if instead of 150 hours of polishing available, अगर हमारे पास 152 hours of polishing available होता है या फिर 121 hours of grinding available होता है, instead of 121 hours of grinding available होता है, तो फिर हम क्या कर सकते थे, हाँ फिर हमारा 4113 would have been more optimum answer because वहाँ पे 296 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है. ठीक है, तो 121 आवर्स का अगर ग्राइंडिंग अवेलेबल होता है, इन दैट केस डेफिनेटली 4113 वुड हैव बीन मच प्रेफरेबल आंसर, बिकॉज उतना अवेलेबल तो है नहीं इस केस में. तो यहाँ पे हमारे पास आंसर होगा 294 रुपीज़. इज दैट क्लियर? सो दैट विल बी ऑल इन दिस सेशन एंड आई बिलीव जो भी क्वेश्चन दे सकते हो समझ में आओगे और सारी चीज़ें क्लियर होगा. इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर, मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट एंड इफ यू लाइक द सेशन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल. If you have not already subscribed to the channel, then subscribe to the channel as well as press the bell icon. You can also message me on Telegram at ADITYAKT. And for any queries or feedback, always feel free to comment. That is all. Bye bye. Take care and keep learning.